Namaskar friends, thank you for your support and thank you for everything. Once again, welcome back to my channel Prashant Sir Official with yet another topic. Today's topic is quality risk management. Nowadays, risk management become an important, very important concern in the pharma industry, food industry, nutraceutical industry, and all industries. Recently revised Schedule M recommend to use quality risk management for the different areas in the pharma industry. Since long back, we are using unknowingly as a need and necessity or part and parcel of our life. This topic is totally based on ICH-Q 9 recommendations, WHO Annex 2 recommendations, and recommendation from the revised Schedule M. In this topic, we mainly discuss about the definition of risk, application of risk management, and I request you to watch this video till the end, because at the end I explained how to apply FMEA tool of quality risk management in different areas of our system. So let us begin with quality risk management. What is the definition of risk? It is the combination of probability of occurrence of risk or occurrence of harm and severity of harm. So, in this definition, we can say that risk is totally depend on occurrence and severity. If we think about the risk management topic, then risk management is not a new concept. We do it informally since long back. Military standards 1629 were introduced long back in 1974 regarding formal risk management. Risk management has been used in the medical devices, telecommunications, aerospaces, car industries for many years. In recent years, you may heard about business continuity plan, disaster management plan, work permit system, different EHS policies. All these areas are related to risk management. Risk management has also been a part of pharma industry for many years. Good manufacturing practices are based on the concept of risk. GMP requirements are designed to address the risk. For example, हमारा जो GMP है वो GMP स्टेराइल प्रोडक्ट्स के लिए स्ट्रिंजेंट हो जाता है, नॉन स्टेराइल के लिए थोड़ा कम स्ट्रिंजेंट हो जाता है. तो स्टेराइल में प्रोडक्ट कंटामिनेशन का, स्टेरिलिटी फेल्यूर का रिस्क ज्यादा है. इसके लिए स्टेरिलिटी फेल्यूर ना हो, उसके रिलेटेड रिस्क मिटिगेट हो, कम हो, उसके लिए GMP requirements are more stringent. So in this case also GMP is a one tool of risk management. In some areas GMP specifies a risk-based approach. For example, a risk assessment approach should be used to determine the scope and extent of validation required. WHO Annex 4 5.2.10 specifies this statement. इसका मतलब यह है कि GMP भी रिस्क मिटिगेशन के लिए ही इंट्रोड्यूस किया गया है. स्पेसिफिकेशंस इन फार्माकोपियल मोनोग्राफ इंक्लूड्स टेस्ट फॉर नॉन पोटेंशियल कंटामिनेशन. हमको पता है कि हम रिलेटेड सब्सटेंसेस के लिए टेस्टिंग करते हैं, नॉन इंप्योरिटीज के लिए करते हैं, अननोन इंप्योरिटीज के करते हैं, स्पेसिफिक इंप्योरिटीज के लिए करते हैं. तो ये जो टेस्टिंग है दैट इज ऑल्सो required to mitigate the risk. As told,
revised schedule speaks on the quality risk management. ICH-Q9 provides us guidance on the same. ICH-Q9 भी रिसेंटली रिवाइज हुआ है, ICH-Q9R1, और उसमें मेनली जो फोकस दिया हुआ है वो इफेक्टिव, इफिशिएंट, साइंस बेस्ड कंट्रोल स्ट्रेटजीज अमंग मैन्युफैक्चरर्स, इंप्रूविंग मैन्युफैक्चरिंग कंसिस्टेंसी, lowering the cost and reducing the likelihood of quality defects, recalls, medicines shortages. So इसका ICH-Q9 का इंट्रोड्यूस होना, उसका पीरियडिकली अपडेट होना, इसका मतलब ही ये है कि अथॉरिटी समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है. फ्रॉम जीएमपी पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम रिस्क असेसमेंट या रिस्क मैनेजमेंट को देखेंगे तो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट ओनली कंसर्न विद द रिस्क एसोसिएटेड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, सेफ्टी ऑफ द पेशेंट, सेफ्टी ऑफ द एंड यूजर एंड efficacy of the medicines we manufactured, distributed and consumed by the end user. So आज के टॉपिक में हम क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी के ऊपर ही देखने वाले हैं. व्हाट इज क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट? ICH-Q9 या शेड्यूल एम का डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन ये है, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉर द असेसमेंट, कंट्रोल, communication and review of risk to the quality of medicinal product across the product life cycle, and it can be applied both prospectively, proactively or retrospectively. Proactively अप्रोच का मतलब क्या है कि रिस्क आइडेंटिफाई होने से पहले हम एक रिस्क अज्यूम करते हैं और अज्यूम करने के बाद उसको मिटिगेट करने के लिए अगर हम कंट्रोल मेजर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो दिस अप्रोच इज प्रोएक्टिव अप्रोच. एंड रिट्रोस्पेक्टिवली का मतलब है हमने सिस्टम इंप्लीमेंट किया, हमने सिस्टम को चलाया और सिस्टम चलाने के बाद हमने चालू किया कि इसमें क्या क्या रिस्क है, या कोई एक्सपीरियंस आया उसके बेस पे हमने कंट्रोल मेजर्स इंट्रोड्यूस करना चालू किए. तो दिस इज रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच दैट इज बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ फेल्यूर्स और हिस्ट्री ऑफ ऑकरेंसेस, हिस्ट्री ऑफ हार्म. तो ये जो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट है यू कैन अप्लाई प्रोएक्टिवली एंड रिट्रोस्पेक्टिवली. व्हाट इज जीएमपी एक्सपेक्टेशन? जीएमपी एक्सपेक्टेशन क्या है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट का? तो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट शैल एंश्योर दैट द इवैल्यूएशन ऑफ द रिस्क टू द क्वालिटी शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज एंड अल्टीमेट लिंक टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पेशेंट. ये क्या बोल रहे देखो, अल्टीमेट लिंक टू द प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट और एंड यूजर. तो हमारा इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए रिस्क बेस का, रिस्क का? ये टारगेट शुड बी प्रोटेक्शन ऑफ द पेशेंट्स. द लेवल ऑफ एफर्ट, फॉर्मेलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस शुड बी कमेंसुरेट विद द लेवल ऑफ रिस्क. हम जो लेवल ऑफ एफर्ट्स ले रहे हैं वो लेवल ऑफ रिस्क के हिसाब से होना चाहिए. ज्यादा रिस्क, ज्यादा एफर्ट्स लेने चाहिए टू मिटिगेट द रिस्क. बड़ा रिस्क है तो बड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा. जैसे कि अगर हम रास्ते पे चल रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं, तो हर जगह पे अपना अपना रिस्क लेवल अलग होता है. कुछ एरिया में जैसे कि हमारा मेडिसिनल प्रोडक्ट्स है, हम मैन्युफैक्चर कर रहे टैबलेट, कैप्सूल्स टू मिटिगेट द और टू ट्रीट द पेशेंट्स. तो ये केस में क्या होता है, हमारा रिस्क असेसमेंट बहुत ज्यादा अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि अदर इंडस्ट्री और मेरा मेडिसिनल इंडस्ट्री या फार्मा इंडस्ट्री में बेसिक डिफरेंस क्या है. अदर इंडस्ट्री जैसे बल्ब बना रही है इंडस्ट्री, या कोई कार बना रही इंडस्ट्री, या बाइक बना रही इंडस्ट्री, वहां पे हम बिजली के बल्ब को ईच एंड एवरी यूनिट को चेक कर सकते हैं. वैसा मेडिसिन में कर सकते हैं क्या? हर टैबलेट ले लिया, पेट में डाल दिया, चेक कर लिया और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया, हो नहीं सकता है. इंजेक्शन एक बार बना, बॉडी में लगा तो लगा, उसको
टेस्ट नहीं कर सकते, लाइक बल्ब या कार को चालू करा के चेक कर सकते, टेस्ट ड्राइव ले सकते। यहाँ पे हमारे इसमें केस में स्कोप है क्या टेस्ट ड्राइव का? नहीं है। तो हमारे पास एक ही है कि आपको जीएमपी फॉलो करो, रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीटली अप्लाई करो, जहां जहां रिस्क है उसको मिटिगेट करो। अब इसके लिए जीएमपी एक्सपेक्टेशन क्या है रिस्क का? अ सिस्टम फॉर क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन द क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम। हमारे जीएमपी में क्यूए इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्यूए में रिस्क असेसमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट अभी इंपॉर्टेंट है करके गाइडलाइन में बता रहा है। द हायर द रिस्क लेवल, स्ट्रॉन्गर द क्यूआरएम प्रोसेस शुड बी। द एफर्ट, प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट लेवल शुड बी प्रोपोर्शनल टू द रिस्क। ये हमने डिस्कस कर लिया। अभी आपके सामने जो इमेज दिख रहा है, हमारा क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट टोटली ये इमेज के ऊपर डिपेंड है। हमारा क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, हमारा जो भी डिस्कशन है वो इसके ऊपर रहेगा। इसमें अगर आप देखेंगे ना, इसमें 3 एरिया है। देखो, इनिशिएशन के बाद 3 एरिया है। एक जो येलो में लिखा है उसमें क्या लिखा है? रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में हम क्या करते हैं? पहले रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क एनालाइज करते हैं, रिस्क इवैल्यूएशन करते हैं। मतलब क्या करते हैं? रिस्क आइडेंटिफिकेशन में हम क्या पूछते हैं अपने आप को? व्हाट माइट गो रॉन्ग और हैज गॉन रॉन्ग। मैंने जो पहले बोला था, प्रोएक्टिवली और रिट्रोस्पेक्टिवली। माइट गो रॉन्ग क्या है? ये प्रोएक्टिव अप्रोच है। हैज गॉन रॉन्ग क्या है? ये रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच है। तो सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफिकेशन में अपने आप को हमें एक क्वेश्चन पूछना है। रिस्क एनालिसिस में हमें क्या पूछना है? या रिस्क इवैल्यूएशन में, रिस्क एनालिसिस के टाइम पे हमको ये पूछना है, व्हाट इज लाइकलीहुड और प्रोबेबिलिटी। कितना प्रोबेबिलिटी है? ये फेल्योर का कितना चांस है? रिपीटेशन का चांस कितना है? फेलियर होगा इतना, होगा ही, इसका परसेंटेज कितना है? अगर मैं कुछ 1 या 0 to 10 के स्केल पे काउंट करूं तो वो है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? अगर ये फेल हो गया तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? जैसे कि अगर आप एपीआई इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन चल रही है, अंदर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, अगर वो प्रेशर वॉल्व जो हमने रखा है सेफ्टी के लिए ओपन नहीं होगा तो रिस्क क्या है? इट्स अ वेरी ह्यूज रिस्क। तो वैसे हमको ये पूछना है कि यहां पे सीवियरिटी कितना है, रिस्क कितना है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। और रिस्क इवैल्यूएशन में व्हाट इज द लेवल ऑफ रिस्क। लेवल का मतलब है, इज इट लो लेवल, मीडियम लेवल, मॉडरेट लेवल या हाई लेवल। अगर रिस्क लो लेवल पे है तो वी कैन से इट इज एट एक्सेप्टेबल लेवल। तो हमें वो समझना है। उसके बाद जो ग्रीन जोन है उसमें क्या लिखा है? रिस्क कंट्रोल। अगर हमने एक बार रिस्क असेसमेंट किया, आइडेंटिफाई किया, एनालाइज किया, इवैल्यूएशन किया, तो उसके बाद हमारे रिस्क में हमें आज के डेट में क्या कंट्रोल्स है, तो उसमें क्या है? व्हाट कंट्रोल मेजर्स वी हैव टू मिटिगेट द रिस्क। पहला सवाल अपने आपको पूछना है। दूसरा, कैन रिस्क बी रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल लेवल, या आज का रिस्क वो एक्सेप्टेबल लेवल पे है क्या? अगर है तो कोई भी करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन लेने की जरूरत नहीं। अगर वो एक्सेप्टेबल लेवल पे नहीं है तो वो एक्सेप्टेबल लेवल को लाने के लिए हमारे पास क्या कंट्रोल मेजर्स है वो हमें डिस्कस करना है। और कंट्रोल मेजर्स अगर नहीं है तो हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद फिर से हमको रिस्क को रिव्यू करना है। जो भी हमने आउटपुट दिया, जो भी रिजल्ट आए रिस्क क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का, उसको हमको रिव्यू करना है। रिव्यू करने के बाद उसके रिव्यू इवेंट, दैट इज मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाने हैं। उसमें हमें ये डिस्कस करना है अगर कोई एडिशनल कंट्रोल मेजर लगेगा तो ये कौन से कंट्रोल मेजर्स है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कितना टाइम लगेगा, एंड वो अप्लाई करने के बाद फिर से अपने को रिस्क असेसमेंट करना है। और ये जो पूरा एंटायर इमेज है उसमें लेफ्ट में और राइट में 2 वर्टिकल कॉलम्स है। एक में लिखा है रिस्क कम्युनिकेशन, दूसरे में लिखा है रिस्क मैनेजमेंट टूल्स। तो हमको यह बताना चाह रही है डायग्राम कि आप कोई भी एक टूल रिस्क मैनेजमेंट का ले लो और उसको ये सारे बैकग्राउंड पे रन करो, और जहां जहां पे आपको रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा है, जिसके जिसके रिलेटेड रिस्क है, वो सबको रिस्क कम्युनिकेशन करना उसी लेवल पे जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने असेसमेंट चालू किया, हमको इमीडिएट पता चला कि यहां पे रिस्क है, इमीडिएटली सबको पता करो, कम्युनिकेट करो कि ये रिस्क है। हमको वहां पे आइडेंटिफाई नहीं हुआ, रिस्क कंट्रोल के टाइम पे हमारे समझ में आ रहा है कि यहां पे रिस्क है, वो टाइम पे
उनको इंटीमेट करो। ऑल स्टेक होल्डर्स शुड बी इंटीमेटेड अबाउट द प्रोबेबल रिस्क और आइडेंटिफाइड रिस्क वेल विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम एज अर्ली एज पॉसिबल, ये रिक्वायरमेंट है। तो रिव्यू इवेंट के बाद करना है, क्या करना है, जो मैंने डिस्कस किया, आफ्टर अप्लाइंग कापा अगेन रिव्यू द रिस्क एंड इंश्योर दैट रिस्क इज एक्सेप्टेबल। जब तक रिस्क एक्सेप्टेबल लेवल तक नहीं आता तब तक अपने को कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करते रहना है। अभी आप मुझे ये पूछेंगे कि सर रिस्क अवॉइड नहीं कर सकते क्या, आप एक्सेप्टेबल लेवल पे क्यों बोल रहे हो? तो जनरली और फ्रैंकली टेलिंग, कोई भी रिस्क हम 100% किसी भी चीज को रिस्क फ्री नहीं कर सकते, 100% सेफगार्ड खुद को नहीं कर सकते। तो रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल पे ला सकते हैं, इसके लिए ये वर्ड यूज किया है कि ये एक्सेप्टेबल लेवल के लिए रिस्क को लेके आना। यहां पे अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन से टूल्स है जो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूजफुल है। ICS Q9 में ये सारे टूल्स बताए गए हैं। एक है फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस। आज के वीडियो में हम लोग फेल्योर मोड इफेक्ट एनालिसिस का पूरा A to Z सीखने वाले हैं एक ही टूल के ऊपर, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में FMEA, फूड इंडस्ट्री में HACCP, VACCP, TACCP, ये 3 टूल फार्मा इंडस्ट्री में यूज होते हैं। HACCP, VACCP, TACCP फूड इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है, FMEA एंड HACCP फार्मा में भी यूज होता है। और HACCP, VACCP और TACCP के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं। इसके लिए आज के वीडियो में हम लोग खाली FMEA टूल को सीखने वाले हैं। तो अदर टूल्स कौन से हैं? फेल्योर मोड इफेक्ट एंड क्रिटिकलिटी एनालिसिस, FMECA, देन फॉल्ट ट्रे एनालिसिस, देन हैजार्ड ऑपरेबिलिटी एनालिसिस, देन preliminary hazard analysis, risk ranking and filtering, and other supporting tools like histogram charts. These are the QRM tools. Now, जैसे मैंने बताया, आज के इस वीडियो में हम लोग मेनली फोकसिंग ऑन FMEA। तो डेफिनेशन क्या है FMEA का? A systematic method of identifying and preventing product and process problem before they occur. इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसमें क्या होता है, हमको ये कॉज इफेक्ट भी समझना पड़ता है। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो जो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है, आप उसको भी समझ लेना। वो आपको इन्वेस्टिगेशन में और रिस्क असेसमेंट में हेल्प करेगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको फॉलो कर लेना। और मैं एक एक्सेल शीट भी एज अ टेम्पलेट दे दूंगा, जिसमें आप FMEA जो है आपके किसी भी सिस्टम में इजिली रन कर सकते हो, राइट। So what is the definition of cause? The underlying factor behind the failure mode. हमको cause को ऐसे समझना है। Effect क्या है? The result of an action or inaction that which results or could result from a cause. Failure mode क्या है? Different ways that a process or sub process can fail to provide the anticipated result. अगर हम इसको ऐसे समझे कि हमने कार लिया, तो कार में हमने क्या क्या लिया, क्या फीचर मांग रहे हैं हम लोग कि कार का स्पीड मुझे इतना मिलना चाहिए, 180 की स्पीड से कार चलनी चाहिए, लेकिन अंदर के बैठे हुए लोगों को कुछ उसका इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट, वाइब्रेशंस नहीं आना चाहिए। उसके अंदर AC होना चाहिए जो कंफर्ट दे दे, उसके अंदर जो सेफ्टी बैग्स रहते हैं वो होने चाहिए। तो ये अगर हम फीचर मांग रहे हैं तो ये फीचर के लिए इसका फेल्योर का प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमको समझना होगा। अगर फेल्योर होता है तो सिवियरिटी का कितना सिवियरिटी है वो हमको समझना होगा, और उसके बाद हमको एक्शन लेने पड़ेगी। उसका मतलब ये कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, और फेल्योर मोड के चांसेस कहां पे है वो हमको समझना है। ये जो FMEA है ये चलता किसके ऊपर है? इसका एलिमेंट्स, 3 की एलिमेंट्स क्या है? एक है सिवियरिटी, दूसरा है ऑकरेंस, तीसरा है डिटेक्शन। पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। द रिस्क प्रायोरिटी नंबर और RPN is a numeric assessment of risk assigned to a process or steps in a process as a part of failure mode and effect analysis. तो FMEA में ये RPN नंबर जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. Each failure mode
gets a numeric score that quantities likelihood of occurrence, likelihood of detection, and severity of impact. The product of these three score is the risk priority number for failure mode. तो क्या है? आरपीएम नंबर जितना बड़ा इसका मतलब रिस्क उतनी बड़ी, आरपीएम नंबर जितना घटा इसका मतलब है रिस्क उतनी घटी। ये कैसे होता है? ये समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेता हूं मैं। अगर सिवियरिटी मुझे समझनी है तो सिवियरिटी में या तो 0 से 10 के स्केल पे रन कर सकता हूं, 1 to 10, 1 to 5 के स्केल पे रन कर सकता हूं। ऑकरेंस भी मैं 1 to 5 के या 1 to 10 के स्केल पे रन कर सकता हूं। सिमिलरली डिटेक्शन भी मैं 1 to 10 या 1 to 5 के स्केल पे रन कर सकता हूं। अगर मेरा सिवियरिटी 2 स्कोर हुआ, ऑकरेंस भी 2 स्कोर हुआ, डिटेक्शन भी 2 स्कोर हुआ, तो 2 into 2 into 2, तो प्रोडक्ट कितना आया? 8, राइट? तो 8 जो है ये मेरा आरपीएन आया। तो आरपीएन 8 आया, इसका मतलब क्या है? ये एक्सेप्टेबल लेवल पे। ये कैसे? अगर आप 1 to 10 के स्केल पे इसको रन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट का एक आपको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देना पड़ेगा। अगर 1 to 5 कर रहे उसके लिए भी आपको एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देना पड़ेगा। तो ये जनरली एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कैसे होता है? अगर 1 to 5 के स्केल पे है तो 0 to 8 में अगर आरपीएन नंबर आता है तो आपका एक्सेप्टेबल में है। तो वो किसके लिए है? हमारा मैक्सिमम अगर सिवियरिटी है 5 है, ऑकरेंस 1 है, ऑकरेंस डिटेक्शन 1 तो 5 हो जाएगा वो सिवियरिटी के स्केल पे। लेकिन ऑकरेंस ही नहीं है, डिटेक्शन की जरूरत नहीं है, डिटेक्शन लेवल एकदम बढ़िया है, तो हमारा सिवियरिटी का ज्यादा होने से कुछ रिस्क बढ़ता नहीं है। तो हम एक मिडल लेवल पे चलते हैं। वहां पे ऑकरेंस इन सिवियरिटी 3 है तो 3 into 3 का प्रोडक्ट होता है 9। तो हमने 8 के स्केल पे रखा कि अगर 9 है तो मेरा मॉडरेट स्केल में जा रहा है। सिमिलरली अगर वो 5 पे 2 है, 5 into 5 तो 5 into 5 25 हो जाएगा। तो 25 के स्केल में वो मेरा रिस्क मॉडरेट हो जाता है, और उसके 25 के ऊपर जाएगा तो मेरा रिस्क हाई हो जाता है। तो उसको आपको आपके रेफरेंसेस डिफाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा आरपीएन नंबर के लिए। ये जो आरपीएन है उसमें हमको सिवियरिटी, ऑकरेंस और डिटेक्शन को समझना पड़ेगा। सिवियरिटी क्या है? सिवियरिटी इज इंपॉर्टेंस ऑफ द इफेक्ट ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट्स ऑफन कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस। सिवियरिटी के ऊपर हम जनरली कुछ नहीं कर पाते। सिवियरिटी कम करने के लिए हमें ऑकरेंस और डिटेक्शन के ऊपर काम करना पड़ता है। तो ऑकरेंस क्या है? ऑकरेंस इज फ्रीक्वेंसी विथ विच अ गिवन कॉज ऑकर्स एंड क्रिएट फेल्योर मोड्स। डिटेक्शन क्या है? हमारे कंट्रोल मेजर्स, द एबिलिटी ऑफ द करंट कंट्रोल स्कीम टू डिटेक्ट और प्रिवेंट गिवन कॉज। तो मेरे लिए ऑकरेंस सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? पर डिटेक्शन, क्योंकि यहां पे कंट्रोल भी हो रहा है और चांसेस है कि वो प्रिवेंट भी हो जाए कॉज को। ऑकरेंस तो मेरा काउंट है, और सिवियरिटी के ऊपर यूजुअली हम कुछ नहीं कर पाते। एफएमईए में इनपुट और आउटपुट कैसा होता है? इनपुट में ब्रेनस्टॉर्मिंग, सीएनडी मैट्रिक्सिंग, प्रोसेस मैप, प्रोसेस हिस्ट्री, प्रोसीजर, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये सारे इनपुट है। आउटकम क्या है? लिस्ट ऑफ एक्शंस टू प्रिवेंट द कॉजेस और डिटेक्ट फेल्योर मोड्स एंड हिस्ट्री ऑफ एक्शन टेकन। ये हमारा आउटपुट आ जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद या प्रोसेस हिस्ट्री रिव्यू करने के बाद। नाउ अगर फेल्योर मोड आपने आइडेंटिफाई किया 1 या 2, हो सकता है 1 का फेल्योर मोड का इफेक्ट 1 ही हो, फेल्योर मोड 2 का इफेक्ट 2 ही हो। कभी कभी ये भी हो सकता है कि फेल्योर मोड 1 और 2 का इफेक्ट कॉमन हो। कभी कभी ये भी हो सकता है कि फेल्योर मोड 1 के 1, 2, 3, 4 इफेक्ट हो। तो हमको वो भी आइडेंटिफाई करने होते हैं। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं एफएमईए फैसिलिटी, फार्मा फैसिलिटी डिजाइन के ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूं, तो उसमें अगर फार्मा फैसिलिटी डिजाइन कर रहा हूं तो हमको क्या क्या सोचना पड़ता है? अगर गाइडलाइन के हिसाब से देखेंगे तो, शेड्यूल के हिसाब से देखेंगे तो, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द जीएमपी? मेन एक्सपेक्टेशन, बिल्डिंग शुड बी अवे फ्रॉम द ओपन ड्रेनेजेस. Another expectation,
man metal movement flow should be uniform. There should be some measures you should take for the contamination control. Mix-up control के लिए आपके पास क्या measures है, pest control के लिए क्या measurement है, आपके पास क्या controls है. Similarly, if our product is moisture sensitive, heat sensitive, light sensitive, accordingly environmental conditions should be defined, modified. तो ये सोचते हैं हम लोग. तो दिस इज वन काइंड ऑफ रिस्क असेसमेंट. लेकिन सिस्टमैटिक वे से अगर इसको अप्लाई करना है तो कैसे करना है वो हम लोग सीखते हैं अभी. तो इसमें क्या होता है, 1 2 3 4 स्टेप है. फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई ऑल कंपोनेंट्स और सिस्टम्स एट ए गिवन लेवल ऑफ द डिजाइन हायरार्की. लिस्ट द फंक्शंस ऑफ ईच आइडेंटिफाइड कंपोनेंट्स और सिस्टम. उसके बाद आइडेंटिफाई फेल्यूर मोड ऑफ फॉर ईच कंपोनेंट or each system. Typically, there will be several ways in which component can fail. Determine the effect both locally as well as globally on the system. तो ये 4 स्टेप में हमारा FMEA चलता है. अगर इसका एग्जैक्ट मेथड हमको अप्लाई करना है तो हमको कुछ और भी सीखना पड़ेगा. क्या है वो? क्लासिफाई द फेल्यूर बाय इट्स इफेक्ट ऑन द सिस्टम ऑपरेशन. फेल्यूर ये है, इफेक्ट ये है. फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रेशर वाल्व ऑटोक्लेव है, ऑटोक्लेव का प्रेशर वाल्व सेफ्टी वाल्व ओपन नहीं हुआ तो उसका इंपैक्ट ये है. सिमिलरली जहां पे सेफ्टी गार्ड दिए है, मशीन के अंदर किसी ने हाथ डाला, सेंसर दिए है कि मशीन के अंदर हाथ जाने के बाद मशीन स्टॉप हो, अगर नहीं हो रहा है तो मेरा कंट्रोल मेजर काम नहीं कर रहा है. तो वो टाइप के आपको फेल्यूर्स को चैलेंज भी करना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा. आइडेंटिफाई हाउ द फेल्यूर मोड कैन बी डिटेक्टेड. अगर वो डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो उसको आपको दूसरा सेंसर देना पड़ेगा, जो भी अदर वेज है उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. आइडेंटिफाई एनी कॉम्पेंसेटिंग प्रोविजन और डिजाइन चेंजेस टू मिटिगेट द फेल्यूर इफेक्ट. कभी कभी क्या होता है, हमारा डिजाइन गलत होता है, वो रिपीटेडली काम नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में जो स्ट्रिप पैकिंग मशीन चला रहे हैं उनको पता होगा कि हमारा नो फील्ड डिटेक्शन है. इनिशियली नो फील्ड डिटेक्शन है, इसका मैकेनिज्म क्या था, हम लोग हाथ से देखते थे इंडिविजुअल पॉकेट को. उसके बाद क्या आया, मैकेनिकल आया जिसमें रोलर घूम रहा है उसके ऊपर और डिटेक्ट करके सेंसर दे रहा है. आज की डेट में कैमरा आया. तो ये सारी इंप्रूवमेंट है. दीज ऑल इंप्रूवमेंट्स आर बेस्ड ऑन दी जो हिस्ट्री है या रिस्क असेसमेंट किया गया है उसके ऊपर है. और हमको क्या करना पड़ेगा, जितना रिस्क बढ़ा उसकी प्रायोरिटी बढ़ी. अभी ये जो टेबल है, ये जो फॉर्मेट है, वो अब हमारे लिए की एरिया है. ये अगर आप समझ लो तो आप कोई भी रिस्क असेसमेंट आप इजीली कर पाओगे. फॉर एग्जांपल इसमें क्या दिया है, टाइटल में डालो कि मुझे कौन सा प्रोसेस पकड़ना है और कौन सा प्रोडक्ट है. फॉर एग्जांपल अगर मैं पैरासिटामोल बना रहा हूं तो मेरा प्रोडक्ट बन गया पैरासिटामोल 500 mg. इसमें प्रोसेस क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के सब स्टेप्स हमको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, राइट. तो यहां पे जो अगर येलो कलर का जो हेडिंग देखोगे उसमें क्या लिखा है, पहले कॉलम में लिखा है प्रोसेस स्टेप, दूसरा पोटेंशियल फेल्यूर मोड, तीसरा पोटेंशियल फेल्यूर इफेक्ट. प्रोसेस स्टेप में क्या रहेगा, व्हाट इज द प्रोसेस स्टेप, इनपुट अंडर द इन्वेस्टिगेशन. अगर मैं टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग का बात करूं तो पहला क्या है डिस्पेंसिंग, दूसरा क्या है ग्रेनुलेशन, तीसरा क्या है ब्लेंडिंग, चौथा क्या है कॉम्प्रेशन, पांचवा क्या है स्ट्रिप पैकिंग, छठा क्या है सेकेंडरी पैकिंग. तो ये स्टेजेस हमको डालने हैं प्रोसेस स्टेप में. पोटेंशियल फेल्यूर अगर मैं ग्रेनुलेशन का बात करूं तो क्या होगा, कंप्रेशन का बात करूं तो क्या होगा, ब्लेंडिंग का करूं तो क्या होगा, हो सकता है डिस्पेंसिंग का करूं तो क्या होगा. अगर डिस्पेंसिंग का बात करेंगे तो डिस्पेंसिंग में बैलेंस कैलिब्रेटेड नहीं होगा, एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रॉपर नहीं होंगे, ये फेल्यूर है, फेल्यूर मोड है. तो इसका फेल्यूर का इफेक्ट क्या हो सकता है, इंपैक्ट क्या हो सकता है ऑन द हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, तो प्रोडक्ट फेल्यूर हो सकता है. अगर मॉइस्चर सेंसिटिव है तो हमारा मॉइस्चर आउट ऑफ लिमिट जा सकता है. कॉम्प्रेशन के स्टेज में अगर मेरा पंच डाई काम नहीं कर सकता, कैपिंग चिपिंग आ सकता है. तो ऐसे आपको एक एक समझना पड़ेगा. और ये जो फेल्यूर्स है उसकी सिवियरिटी का रेटिंग करना पड़ेगा ऑन द स्केल ऑफ 0 to 5 और ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10. वो 0 to 5 या 0 to 10 कैसा है वो मैंने आगे बताया हुआ है. उसके बाद पोटेंशियल कॉजेस, हमको ये समझना पड़ेगा कि ये फेल्यूर क्यों हुआ. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा टेम्परेचर ह्यूमिडिटी जा रहा है तो फेल्यूर क्या हुआ, हो सकता है मेरा एचओ काम नहीं कर रहा है, हो सकता है पावर फेल्यूर हो गया,
हो सकता है फिल्टर फट गए हैं, या कोई अपना जो हीटर है वो हीटर काम नहीं कर रहे, तो आपको वो पोटेंशियल कॉज से आइडेंटिफाई करना है। और ये कॉज आइडेंटिफाई करते हैं हमको ये समझना है कि इसका चांसेस कितना है, ये रिपीट होने का चांसेस कितना है, दैट इज ऑकरेंस, उसको आपको स्केलिंग करना है। उसके बाद ये समझना है कि हमारे करंट मेजर्स क्या है। तो करंट मेजर में क्या होगा, अगर आपके पास सेंसर लगे हुए तो जैसे ह्यूमिडिटी टेम्परेचर आउट ऑफ लिमिट जाएगा, सेंसर काम कर देगा, ऑडियो विजुअल अलार्म्स आ जाएंगे, तो हमारा कंट्रोल है। तो डिटेक्शन में अपना काम कर रहा है क्या, वो अगर कर रहा है तो डिटेक्शन का रेटिंग करो आप। उसके बाद RPN रिस्क प्रोबेबिलिटी नंबर, आपको वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, जैसे मैंने बताया था, सिवेरिटी इंटू ऑकरेंस इंटू डिटेक्शन, वो जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा RPN। और जैसे मैंने बताया ये हो गया हमारा पहला लेवल। सेकंड पार्ट में क्या है, एक्शंस रिकमेंडेड है। हमने एक्शंस रिकमेंड किए, अगर कुछ फेल्यूर हो रहा है, अगर आपका टेम्परेचर ह्यूमिडिटी आउट ऑफ लिमिट गया, आपको पता ही नहीं चल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको सेंसर लगाना पड़ेगा, ऑडियो विजुअल अलार्म्स देने पड़ेंगे। तो आप एक्शन रिकमेंडेशन में लिखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, प्रोडक्शन और इंजीनियरिंग का है, वो डाल दो वहां पे कि कौन रिस्पॉन्सिबल, नाम के साथ आप डाल सकते हो। एक्शन लेने के बाद ये रिस्क मिटिगेट हुआ क्या, तो आप उसको सिवेरिटी ऑकरेंस डिटेक्शन के ऊपर रन करो, फिर उसका RPN नंबर निकालो। ये RPN नंबर अगर आपने डिफाइन किए हुए RPN नंबर के नीचे आ गया तो आपका वो रिस्क एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 से 5 के स्केल पे आप कर रहे हो तो 0 to 8 आपका एक्सेप्टेबल लेवल है, 9 दैट इज लो रिस्क लेवल है, 9 से 25 तक आपका जो लेवल है वो मॉडरेट है। वहां पे आपको एक्शन लेना है, ना कि प्रोसेस स्टॉप करनी पड़ेगी, प्रोसेस तो चलती रहेगी, लेकिन आप रिस्क कम है, रिस्क रिड्यूस करने के लिए एक्शन ले लो। अगर रिस्क हाई है तो आपको एक्टिविटी स्टॉप करनी पड़ेगी, और वो एक्शन लेने के बाद ही आप एक्टिविटी आगे बढ़ा सकते हो। तो ये आपको इंटरनली आपका जो भी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपको डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद ये खाली मैंने समझने के लिए फिर से ये डाला हुआ है। इसमें क्या है, पहला जो पार्ट है जहां पे सिवियरिटी का है, तो आइडेंटिफाई द फेल्यूर मोड एंड देयर इफेक्ट्स। दूसरा जो पार्ट है, आइडेंटिफाई कॉज ऑफ द फेल्यूर मोड्स एंड कंट्रोल। ये जो RPN है उसके ऊपर हम लोग प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन एंड एसेस द एक्शन, और एक्शन लेने के बाद फिर रिव्यू कर रहे हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन के लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इमेज, आप यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करो, पहले वाली इमेज को समझो, दूसरे वाली ये इमेज को समझो, ये टेबल को समझो, तो आप इजीली वो समझ पाओगे। इसके बाद मैंने ये रिस्क रेटिंग दिए हुए, रैंकिंग दिए हुए, यहां पे आपको क्या करना है, आप वीडियो को पॉज करो, ये रैंकिंग को आप 1 by 1 पढ़ लो। समझने की बात इतनी है कि सिवेरिटी का जो रेटिंग है वो ऐसा होता है, जितना रेटिंग हाई उतना सिवेरिटी हाई, जितना रेटिंग कम उतना सिवेरिटी कम। मतलब रेटिंग हाई आ रहा है, इसका मतलब इंपैक्ट बहुत बड़ा है। सिवेरिटी के केस में रेटिंग करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है, और इसको आप समझ के ले लो, ये वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ लेना। दूसरा ये ऑकरेंस है, ऑकरेंस में भी सेम है, जितना रेटिंग ज्यादा ऑकरेंस का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लाइकलीहुड ज्यादा है। जितना लाइकलीहुड कम है, एक्सट्रीमली अनलाइकली है, तो आपका रैंकिंग 1 है, मैक्सिमम लाइकलीहुड है तो आपका रैंकिंग 10 है। और आपको इसको सेम को पहले दो टेबल को आप मर्ज करके रेटिंग 1 to 5 पे ला सकते हो, जो मैंने स्केल बताया उसके ऊपर। डिटेक्शन के केस में आपको ये रेटिंग आपको समझना होगा कि डिटेक्शन के केस में ये रेटिंग उल्टा हो जाता है। अगर आपका डिटेक्शन एक्सट्रीमली स्ट्रांग है तो आपका रेटिंग कम होता है, आपका डिटेक्शन एक्सट्रीमली अनलाइकली है तो रेटिंग ज्यादा होता है। क्योंकि आपका डिटेक्शन फेल हो गया, इसका मतलब आपने रिस्क बढ़ाई, आपका डिटेक्शन अच्छा हो गया, इसका मतलब आपने रिस्क घटाई। तो इसके लिए ऑकरेंस और सिवियरिटी का रेटिंग बढ़ता है, मतलब सोचने वाली बात है, सीरियस इश्यू है। डिटेक्शन का रेटिंग बढ़ता है, इसका मतलब वी आर सेफ। ये थोड़ा समझ लो आप। सो दैट्स ऑल। जैसे मैंने बताया, आपके कोई भी क्वेश्चन से आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको आंसर देता रहूंगा। लिंक में मैं एक एक्सेल शीट भी दे रहा हूं फॉर आपके इजी रेफरेंस के लिए। उसके साथ साथ मैं कुछ रेफरेंसेस भी दे रहा हूं, आप देख लेना उसको।
और वंस अगेन एक प्यारा सा क्वेश्चन, आपने अपना चैनल सब्सक्राइब किया क्या? अगर नहीं किया है तो अभी उसको सब्सक्राइब कर लेना, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। कुछ टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो कि मैं नया वीडियो बनाऊं या इसके ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आई विल ट्राई टू प्रिपेयर अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। एंड वंस अगेन थैंक यू, जय हिंद।